Okay. हाँ सर. So here we have PV is equal to nRT, our very famous ideal gas equation. Okay, but the very part that we need to discuss over here is that this is a ideal gas, and this is ideal. Do ideal gas exist? बेटा ideal gases nature में होते हैं क्या? Zero intermolecular force of interaction, इसका perfectly elastic in nature and all, ये सब होता है बेटा? हाँ सर. No sir. Yes sir. नहीं होता है, right? तो हम लोग को this we have to see for the real gases, right? So if you find out, if you plot this graph of PV, product and volume against P, guys you remember मैंने आपको PV जो था वो मैंने आपको बताया था, it is actually the work done by the gas, इसीलिए A का यूनिट्स में हम लोग जूल्स और कैलोरीज इंट्रोड्यूस करते हैं. याद है आपको जब मैं आपको न्यूमेरिकल सिखा रहा था, जब मैं आपको R की वैल्यू सिखा रहा था, तब मैंने आपको कहा था P into V is nothing but the work done by the gas, है ना बच्चों? Yes sir. Yes sir. जी. अच्छा, what is PV equal to as per the ideal gas equation? nRT. Yes sir. Yes sir. अच्छा, so PV is equal to nRT should be constant for all values of pressure as per the ideal gas law. So if I increase pressure, see this, if I increase pressure along the x-axis, the PV, the product of pressure and volume should not increase. It should remain constant throughout. It should remain constant throughout. ऐसा ideal gas बोलता है. But reality में होता है बेटा? नहीं. No sir. No नहीं sir. होता है. क्यों? For the real gas, it is different. Look at these different graphs. हर एक गैस अलग तरीके से behave करेगा. Every gas will have its own different graph. Ideal gases, all ideal gases have the same property, but real gases, they behave differently to pressure, they react differently to temperature. Almost similar, but क्या बोलते हैं, having a different deviation, थोड़ा सा deviation है. अब हमने ideal gas के लिए क्या देखा बेटा? यहाँ पे देखो straight line है. PV is always constant, but real gases के लिए देखो P into V, the product of pressure and volume, the work done by the gas, it keeps on increasing if you increase the pressure. अगर हमने pressure increase किया तो ये increase होता रहेगा, ये increase होता रहेगा. कुछ gases ऐसे हैं जहां पे पहले decrease होगा और फिर उसके बाद increase होगा. तो इसके रीजंस हम लोग को जाने, इसके रीजंस हम लोग को देखने हैं, राइट? सो रियल गैसेस, इट इंक्लूड्स ऑल द गैस, राइट? सर आपका आवाज थोड़ा ब्रेक हो रहा है. हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, किसी भी गैस की बात, deviation from सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है. But am I audible now? Yes. Yeah, I heard that for the first time. Am I audible now? Yes sir. बेटा अभी Yes, आवाज sir. आ रही है? हाँ जी. तो मैं आपको यही बोल रहा था कि ये देखो, ये आइडियल गैस का इक्वेशन है, राइट? Yes sir. Yes sir. और ये रियल गैसेस का इक्वेशन है. तो ये फ्लैट लाइन से ये सब लाइंस कितना दूर जा रहे हैं, तो कितना ज्यादा डिविएशन हो रहा है ना. मतलब Yes. आइडियल गैस और रियल गैस का मतलब बहुत दूर दूर तक संबंध नहीं है वो, बल्कि ऐसा बोल सकते हैं वो पूरा उसका उल्टा ही है रियल गैसेस का. ये देखो, वी आर गेटिंग टू टाइप्स ऑफ कर्व्स. ये देखो, हाइड्रोजन और हीलियम की अगर मैं बात करूं, if I look at the curve for hydrogen and helium are showing positive deviation. अगर मैंने प्रेशर इंक्रीज किया हाइड्रोजन और हीलियम गैस के ऊपर, तो उसका PV इज इक्वल टू एनआरटी वाला जो वैल्यू है, PV जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज होगा. और वो इंक्रीज ऐसे ही इंक्रीज नहीं होगा, वो इंक्रीज होता चला जाएगा. कैन यू सी द रेड एंड द ब्लू ग्राफ? Yes sir. Yes sir.
that red and that blue graph is for अपना क्या बोलते हैं real gases, hydrogen and helium. Hydrogen or helium में the value of PV is not going to be constant. It is going to continuously increase and it is always going to be above the ideal gas का value. Ideal gas का value देखो कहाँ पे नीचे है ना ग्राफ में बेटा, ये यहाँ पे नीचे है, इसका दोनों का वैल्यू इसका ऊपर है ना? Yes, sir. Yeah, they are showing continuous increase in PV with the continuous increase in pressure. But look at other gases, carbon monoxide and methane. कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन, ये देखो ये बायोमोलिकुलर या फिर मल्टीमोलिकुलर गैसेस हैं. दूसरे वाले जो थे वो मॉलिकुलर गैसेस थे, हाइड्रोजन हीलियम एलिमेंटल गैसेस थे. ये कैसे हैं? कंपाउंड गैसेस है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन एंड ऑल. इनके अंदर एक से ज्यादा एलिमेंट इन्वॉल्व है. अब अगर इनका ग्राफ में देखो, इफ आई ऑब्जर्व द ग्राफ ऑफ दीज गैसेस, इट the product and pressure volume with the increase in pressure will first decrease and then it will suddenly start to increase. यहाँ पे ऐसा पता है क्यों होगा? ठीक है, ये देखो डिक्रीज होगा, फिर एक मिनिमम वैल्यू डिक्रीज, मिनिमम वैल्यू, और उसके बाद इट कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस एंड क्रॉसेस द आइडियल गैस का लाइन. ये देखो आइडियल गैस की लाइन को क्रॉस होकर ऊपर जाता है. सो लुक, यू आर हैविंग पॉजिटिव डेविएशंस एंड नेगेटिव डेविएशंस. गाइस तुम लोग ये वाला ग्राफ समझे? Yes, sir. एवरीवन, अथर्व, Yes, sir. संस्कार, प्रकृत. अब देखो, अब यू रिमेम्बर हम लोग ने बॉयल्स लॉ किया था बेटा? Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी, बॉयल्स लॉ में क्या बोलता है? बॉयल्स लॉ में PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. उसका ग्राफ हमने ऐसे ही देखा था आइडियल गैस इक्वेशन में, इस तरीके से देखा था हमने ग्राफ, है ना? Yes, sir. Yes, sir. ये आइडियल गैस और रियल गैस जो वॉल्यूम है, ये देखो आइडियल गैस की वॉल्यूम बहुत कम होती है बट रियलिटी में वॉल्यूम ज्यादा होती है. अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पे नीचे प्लॉट करूं इसकी वैल्यू, और इस सेम पॉइंट को यहाँ पे नीचे प्लॉट करूं तो इसकी वैल्यू कम है एज कंपेयर टू द रियल गैस. तो रियल गैस का वॉल्यूम इज मोर एज कंपेयर टू द आइडियल गैस वॉल्यूम. गाइस Yes, sir. लास्ट क्लास में समझाया था ना आपको बच्चों, मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था ना ये. Yes, sir. Yes, ऐसा sir. है, क्यों उसका प्रेशर कम होता है रियल गैस का. रियल गैस में प्रेशर भी कम होता है एज कंपेयर टू आइडियल गैस, बट वॉल्यूम ज्यादा होती है एज कंपेयर टू आइडियल गैस. यू रिमेम्बर मैं अपने आप को दीवार पे पटक रहा था? Yes, sir. Yes, sir. बच्चों मैंने लास्ट क्लास में जब, आई नो कल मैंने लेक्चर नहीं लिया, बट लास्ट संडे को जो मैं आपको सिखा रहा था, रिमेम्बर मैंने आपको बोला था कि मैं अकेला चल रहा हूं, मैं दीवार से टकरा रहा हूं, और अगर कोई मेरा हाथ पकड़ के रखेगा जब मैं दीवार से टकराऊंगा तो प्रेशर अलग लगेगा. Yes, sir. Yes, तुमको sir. याद Yes. आ रहा है वो लेक्चर? तुमको मैंने रीजंस बताए थे क्यों ये डिविएशन आता है, क्यों रियल गैस का प्रेशर इज लो एज कंपेयर टू आइडियल गैस एंड इट्स वॉल्यूम इज मोर एज कंपेयर टू आइडियल गैस, बिकॉज इट कैन नॉट बी कंप्लीटली कंप्रेसिबल. जैसे ही मॉलिक्यूल्स को आप जरूरत से ज्यादा पास लेके आओगे तो वो रिपल्शन होगा, रिपल्शन की वजह से वॉल्यूम बढ़ेगा. याद आ रहा है कुछ लास्ट क्लास का? हाँ sir. Yes. पक्का ना कि बस मुझे बुरा ना लगे इसलिए हाँ हाँ कर रहे हो? नहीं सर, याद है. वेरी गुड, वेरी गुड. बेटा प्रैक्टिस करते रहा करो. हाँ sir. ये देखो ये सब मैंने डिस्कस किया था आपको, रियल गैस एंड रियल एंड ये देखो ये जो वैल्यू है ये आइडियल गैस का वॉल्यूम है एट हाई प्रेशर, और ये रियल गैस का वॉल्यूम एट हाई प्रेशर. ये बेटा ये प्रेशर हाई है ना,
along y axis 0 से शुरू हो रहा है और ऊपर जा रहा है. At this high pressure आइडियल गैस का वॉल्यूम कितना होता है? इतना कम होता है. और रियल गैस का एक्चुअल वॉल्यूम कितना होता है? ज्यादा होता है ना बेटा? Yes, sir. Yes, sir. और लो प्रेशर पे देखो, जब प्रेशर लो होता है, जब गैस के ऊपर हम लोग प्रेशर बहुत लो बना के रखेंगे ना, तब देखो आइडियल वॉल्यूम और रियल वॉल्यूम ऑलमोस्ट सेम हो जा रहा है यहाँ पे, है ना? तो वी कैन से दैट at very low pressures real gases behave like ideal gases. They are not ideal gases, they will behave like ideal gases. तो जब प्रेशर गैस के ऊपर बहुत लो हो जाएगा, तब उसका वॉल्यूम आइडियल गैस के वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा. मतलब इट विल बिहेव लाइक आइडियल गैस. एम आई क्लियर विद दिस गाइस? Yes, sir. Yes, sir. तुम लोग कितना लेट ज्वाइन करते हो? आर्या एंड ऑल दे आर जॉइनिंग सो लेट. अभी 1:17 हो गया बेटा. प्लीज बी पंक्चुअल. ये ग्राफ बनाना है आपको, आई मीन लाइक जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. आई एम लीविंग इट अप टू यू. बनाना है तो ठीक है, वरना मैं आगे बढ़ता हूँ. हाँ या ना बोलो. Yes, sir. Banana. ठीक है. यहाँ पे ना बेटा, यहाँ पे ऐसे एरो करके लिखना, रियल गैस वॉल्यूम इज ग्रेटर देन आइडियल गैस वॉल्यूम. और यहाँ पे एरो करके लिखना, एट वेरी लो प्रेशर्स आइडियल गैस एंड रियल गैस हैव सेम वॉल्यूम्स, देयरफॉर रियल गैसेस बिहेव आइडियली. ऐसा. चलो जल्दी लिख लो. मैं पानी लेके आता हूँ अपने लिए. Sir. मेरे घर पे आज ना गेस्ट आए हुए हैं. हाँ बेटा बोलो. सर वो डेफिनेशन लिख लिया? रिपीट करो ना. डेफिनेशन रिपीट करो ना नीचे क्या का. बोल रहे बच्चे? जो नीचे लिखने का वो डेफिनेशन रिपीट करो ना. बेटा तुम्हारी आवाज बहुत ऐसी आ रही है. सर वो नीचे का डेफिनेशन रिपीट करो ना. हाँ हाँ हाँ. ये यहाँ पे एरो बना के लिखना कि रियल गैस वॉल्यूम इज मोर एज कंपेयर टू आइडियल गैस वॉल्यूम एट हायर प्रेशर. At higher pressures, real gas volume is more as compared to ideal gas volume. मैंने आपको समझाया है, ये लास्ट क्लास में रीजंस दिए हैं बेटा इसके. आई होप आप लोग को सब लोग को समझा है ये. सर एट मोर प्रेशर ना. हाँ, एट हायर प्रेशर. मोर नहीं बेटा, हाई लिखो उसको. एट हायर प्रेशर्स real gas volume is greater than ideal gas volume, is more than ideal gas volume. कोई भी वर्ड लिख सकते हो. सर और दूसरा वाला. और दूसरा वाला यहाँ पे एरो करके क्या लिखने का, एट लो प्रेशर्स, एट वेरी लो प्रेशर्स रियल गैसेस बिहेव आइडियली. एट वेरी लो प्रेशर्स रियल गैसेस बिहेव आइडियली. सर एक बार फिर से रिपीट करो ना. At very low pressures real gases behave ideally. At very low pressures real gases behave ideally. ठीक है बेटा. Yes, sir.
we go ahead, बच्चों, okay, ठीक है. But real gases, they are significantly deviating at from ideal gas behavior at very high pressure. High pressure में real gas ideal gas में बहुत फर्क होता है. सामने सामने दिख रहा है बेटा वॉल्यूम, ठीक है. ये देखो, वो वेंडरवाल्स फोर्स मैंने आपको बताया था, याद है तुम लोग को? मैंने Yes, जब sir. आपको Yes, sir. इंटरैक्शंस बताए थे बिटवीन मॉलिक्यूल्स, उस टाइम में मैंने आपको वेंडरवाल्स फोर्स बताया था. ये दिस अंकल इज वेंडरवाल्स, जिसके नाम पे रखा था, ठीक है. सो दिस वेंडरवाल ही ऑब्जर्व दैट एट low temperature, at very low temperatures and at very high pressures, real gases, they are not behaving like ideal gases. Acha. So at very low temperature and at very high pressure, following assumptions of kinetic molecular theory do not hold good. मतलब kinetic molecular theory gases में हमने क्या पढ़ा था? There are no forces of attraction between gas molecules, right? Yes, sir. They can be negligible, but वेंडरवाल ने ये देखा कि जब टेम्परेचर बहुत लो रहेगा, मतलब गैस के बीच में अट्रैक्शन आएगा, बिकॉज उनका काइनेटिक एनर्जी लूज हो जाएगा, तो वो एक दूसरे के पास आएंगे और इंटरैक्ट करेंगे. देयर इज गोइंग टू बी अ फोर्स ऑफ इंटरैक्शन. एंड एट वेरी हाई प्रेशर्स भी गैसेस आर नॉट compressible to zero volume. You cannot do that. So when you are applying very high pressure, gas molecules एक दूसरे के पास आएंगे और repulsion भी होगा और attraction भी होगा. So ऐसा नहीं बोल सकते कि there is no force of attraction. So this point is not correct at very low temperatures and at very high pressures. Second point कौन सा correct नहीं है? The actual volume of the gas molecules are negligible when compared to the total volume of the gas. You remember मैंने ये point भी आपको बताया था in KTG, kinetic molecular theory of gases, कि जो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैसेस होता है, जो हम लोग सारे मॉलिक्यूल्स को एकजुट कर देंगे तो वो जो वॉल्यूम निकलेगा उसको हम लोग निग्लेक्ट कर सकते हैं एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द रूम. तो वो भी ट्रू नहीं है बेटा. जब हम लोग सारे मॉलिक्यूल्स को एक साथ एक जगह लाएंगे तो वो वॉल्यूम को हम लोग निग्लेक्ट नहीं करेंगे, उसको कंसिडर करना पड़ेगा. वो इतना छोटा वॉल्यूम नहीं होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स को हम लोग जीरो थोड़ी कर पाएंगे बेटा. दे विल हैव सर्टेन वॉल्यूम, राइट? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा. Okay, so these 2 points, they are not, gases are not following these 2 points at low temperatures and at high pressures. तो ये आपको एंट्रेंस में भी ऐसे आ सकता है कि gases do not behave ideally at, ऑप्शंस आएंगे, 4 ऑप्शंस आएंगे, लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर एंड सो ऑन. आपको सिलेक्ट क्या करना होगा? लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर. ठीक है. अब देखो बेटा, at low temperature and high pressure following two assumptions do not hold good, जो हमने अभी पढ़ा. तो अगर there are no forces of attraction between gases, अगर मतलब अगर मैं बोलूं कि नहीं ये भाई वेंडरवाल गलत बोल रहा है, और there is no force of attraction at between the gases, तो liquefaction of gas तो हो ही नहीं सकता था. ये बेटा, liquefaction of gas का मतलब क्या होता है? To convert the gas into liquid बेटा, correct? Yes, sir. Yes, sir. है ना बेटा? I will have to convert gas into liquid. What is एकदम स्टार्टिंग में when I had started teaching you chemistry, जब भी मैंने आपको ये चैप्टर जब भी हमने स्टार्ट किया था, तब मैंने आपको क्या बताया था? सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में there is the difference between the intermolecular forces of attraction. Yes, sir. लिक्विड्स के अंदर there is intermolecular force of attraction, but कम है as compared to solids, right? Yes. Yes, sir. तो अगर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस ये बोलता है कि देयर आर नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, मतलब हम लोग गैस को कभी लिक्विड बना ही नहीं सकते, गैस हमेशा गैस में ही रहेगा, है ना? बट ऐसा रियल लाइफ में होता है क्या? हम लिक्विड गैसेस बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? Yes, sir. लिक्विड अमोनिया, लिक्विड क्लोरीन, लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड, है ना बेटा? Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी. But gases can be liquefied by 2 ways, either by decreasing the temperature or by increasing the pressure. हमने अगर प्रेशर इंक्रीज किया गैस, तो
हो जाएगा। और हम लोग को टेम्परेचर भी साइमल्टेनियसली डिक्रीज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन कंटिन्यूअस मोशन। टू स्टॉप दैट मोशन, टू रिड्यूस दैट मोशन, स्टॉप तो नहीं कर पाएंगे, बट टू रिड्यूस दैट मोशन वी विल हैव टू डिक्रीज द टेम्परेचर। Why will we have to decrease the temperature, beta? Because kinetic energy is directly proportional to temperature. Kinetic energy कम हो जाएगा अगर टेम्परेचर कम किया तो, है ना बेटा? Yes, sir. Yes, sir. गाइस, आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग? आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है क्या? आप मेरे से पूछो ना बेटा। एक बार रिपीट करो ना। एक बार रिपीट करूं? अच्छा, मैं ये बोल रहा हूं कि जब भी अगर मुझे किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना हो, तो मुझे उसका, मैं क्या कर रहा हूं उसका बेटा, मैं उसका फेज चेंज कर रहा हूं। मैं उसको गैस से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा हूं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिक्विड एंड गैस? लिक्विड में द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर मोर एज कंपेयर टू दैट इन द गैसियस स्टेट। तो अभी ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे बढ़ाएंगे? हम मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के पास कैसे लाएंगे? उनके ऊपर प्रेशर डालेंगे, राइट? ये पिस्टन अगर नीचे की तरफ मूव होगा तो ये जो गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आएंगे और इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बढ़ेगा, जिसकी वजह से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। एक पॉइंट वो है। दूसरा, ये कंटिन्यूअसली मूव होते रहते हैं गैस पार्टिकल्स, दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग, दैट मींस दे हैव ऑलवेज। अगर मैं ये गैस का टेम्परेचर कम करूं, अगर इसका टेम्परेचर कम 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 करते गया, तो इनका काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा, बिकॉज ये एनर्जी जा रहा है टेम्परेचर कम होने की वजह से। अगर एनर्जी जाएगा, अगर इनका मोशन स्लो हो जाएगा, मतलब ये फिर से एक दूसरे के पास आते जाएंगे, राइट? एक दूसरे के पास आगे, मतलब मैं गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। Yes, sir. Guys, Yes, sir. there are 48, Yes. 49 students in the class. Are you all understanding what are we discussing over here right now? Bonnie, Yes, sir. Mahendra, Omkar, Rachna, Samriddhi, Yes, sir. Yes, sir. Vismay, Anushri, Uday, Shash, Ghanshyam, Bismi, Ayush, Arya, Aniket, Aditya. Yes, sir. पक्का ना बेटा? प्लीज डाउट पूछो, हाँ बच्चे, अगर नहीं। आई नो दिस इज समथिंग वेरी न्यू फॉर यू। आप लोग अभी अभी ताजे ताजे टेंथ से बाहर निकले हो। मैं समझता हूँ कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको एकदम से समझ में नहीं आएंगे, तो उसके लिए मैं हूं ना बेटा यहाँ पे, है ना? मैं आपको बोर्ड पे भी सिखाता हूँ, मैं आपको वीडियोस दिखा के भी सिखाता हूँ। Sir, your voice is not Guys, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Really sorry, there was a power cut at my place, and that is why I got disconnected. Now I am through phone data, but I doubt I will be able to share the screen with you through the laptop. तो अभी थोड़ा प्लान में चेंज होने का, एंड अपने को कुछ और करने का। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई विल ट्राई टू डू द सेटअप फॉर द बोर्ड वाला थिंग, ठीक है? मेरा प्लान आज आपको वीडियो दिखा के पढ़ाने का था, बट भगवान नहीं चाहता कि आप विजुअल्स देखो। कोई बात नहीं, जिस दिन किसी दिन लाइट रहेगा उस दिन मैं आपको बता दूंगा, दिखा दूंगा। जस्ट गिव मी 2 minutes, आई एम सेटिंग अप दिस वीडियो के
तो बच्चों अपना पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया प्रेशर, इसके बारे में, वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम का चेंजेस होता है, वॉल्यूम इज डिफरेंट। अभी हमने देखो ग्राफ में भी देखा, हमने लास्ट लेक्चर में भी ग्राफ में भी देखा, लास्ट लेक्चर में भी देखा, है ना। Yes, sir. Yes, sir. है बच्चों, Yes, sir. आ रही है बच्चों। अरे यार ये लाइट का बहुत सीन होता है यार, दिमाग खराब हो जाता है वीकेंड्स पे। आइडियली ये नहीं होता है बट ऐसा है, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। या हमने गाइस हमने आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी किया, ठीक है। अभी हमने देखा दैट द रियल लाइफ प्रेशर, ठीक है, मतलब रियल गैसेस का जो प्रेशर होता है वो आइडियल गैस के प्रेशर से कम होता है ना गाइस। Yes, sir. Yes, sir. मैं दीवार से टकराया था तो मैंने आपको बताया था प्रेशर क्यों कम होता है ना। सो आइडियल गैस प्रेशर इज ग्रेटर देन रियल गैस प्रेशर। Yes, sir. Yes, sir. By how much amount it is greater? It is greater by this much amount, a n square upon v square. A is a constant, it is experimentally determined for gases. A is a constant, n is the number of moles and v is the volume of gases. तो जो आइडियल प्रेशर होता है वो रियल गैस से ज्यादा होता है। वो कितना ज्यादा होता है? a n square by v square, a n square by v square। तो आइडियल गैस, अगर मैं रियल गैस के प्रेशर को कंसिडर करूं और आइडियल गैस उससे लिखना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, इसको इसमें ऐड करूंगा ना,
because real gas pressure is less than ideal gas pressure. Yes, sir. Yes, sir. Yes. ये तुमको सबको समझा क्या हुआ है यहाँ पे? इसका टेंशन मत लो, ये A and V, दिस इज ऑल एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। ये एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि इतने वैल्यू से वो ज्यादा रहता है, ठीक है? हाँ सर। Yes. So P ideal is equal to P real plus AN square by V square. N is number of moles, V is volume of the gas, and A is, it is the proportionality constant, and it is the characteristic of a gas. It is a characteristic of a gas. हर एक गैस के लिए A का वैल्यू अलग अलग आएगा। ये आप लिखना चाहते हो बेटा? ये आपको 12th में नहीं, बट आपको एंट्रेंस में बहुत काम आएगा बेटा। आप लोग एंट्रेंस के लिए अभी से सोच रहे हो कि बाद में देखा जाएगा, 11th तो होने दो पहले, ऐसा एटीट्यूड है तो बेटा मत रखो। जेई नीट के लिए अभी से प्रिपरेशन शुरू करो अगर आपका गोल वो है तो, है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो आप लोग लिख रहे हो ये? Yes, sir. प्लीज लिख लें। और कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क मी बच्चों, प्लीज। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन एंड अगेन, प्लीज आस्क डाउट्स। डन? No, sir. ओके। आदित्य लिख रहे बेटा? आदित्य कोनार, आदित्य गीते, Yes, sir. Yes, sir. अबीन, आदित्य गाउडे, अनिकेत मिश्रा, आर्या गवित, आर्यन, अश्विन, बॉनी, देवेश, गायत्री, गोपिका, जोमिन, कशिश, कीर्तना, महेंद्र, ओम, ओमकार। Yes, sir. लिखे हुए हैं। लिख रहे हो ना बेटा सब लोग? समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये अथर्व नहीं है आज के लेक्चर में, है अथर्व बड़े हैं। अथर्व साहब समझ रहे ना बेटा? हाँ सर। अरे वाह बेटा। आज क्या खाया तुमने? सर खाना बाकी है सर। अच्छा बेटा, पेट भर के खाना। हाँ, ये लिख लिया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. कैन आई गो अहेड गाइस? Yes, sir. Yes, sir. ओके। अभी देखो, अपन ने क्या सीखा है? अपन ने क्या सीखा है कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या होता है? द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। बट अगर सब मॉलिक्यूल्स को ऐसा एक दूसरे के पास लाके जमा कर दिया तो वो उसका एक्चुअल वॉल्यूम रहेगा, मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम रहेगा, ठीक है? तो अपना केटीजी क्या बोलता है कि दिस वॉल्यूम कैन बी निग्लेक्टेड, बट रियल लाइफ में डू वी निग्लेक्ट दिस वॉल्यूम बेटा? No. No, right? This is possible only at very low pressure. So molecules are restricted to move around at very high pressures. But हम लोग और ज्यादा प्रेशर नहीं लगा सकते, उसको जीरो स्मैश थोड़ी करेंगे मॉलिक्यूल्स को। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ना बेटा? अगर ये पिस्टन पूरा Yes, sir. नीचे इधर टच कर गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? मैंने मैटर को डिस्ट्रॉय कर दिया। अगर आपने मैटर को डिस्ट्रॉय कर दिया मतलब आप भगवान हो गए बेटा? नहीं। हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मास देखा है ना बेटा? मैटर देखा है ना? वॉल्यूम ऑफ द गैस इज सिग्निफिकेंट। एक प्रेशर के बाद आप उसको और कंप्रेस नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो मतलब रियल लाइफ में वॉल्यूम ज्यादा होता है, आइडियल गैस का वॉल्यूम कम होता है, ठीक है? तो आइडियल वॉल्यूम माइनस द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स, V माइनस B जब हम लोग ये करेंगे, ठीक है? Yes, sir. This B is again the characteristic of the gas. This B is again the characteristic of the gas and N is the number of moles. तो actual ideal volume क्या होता है बेटा? कम होता है। कितना कम होता है? V माइनस NB से कम होता है। मतलब V प्लस NB क्या हो जाएगा बेटा? रियल वॉल्यूम, है ना? Yes, sir.
Yes, और sir. Yes, sir. आइडियल वॉल्यूम कितना कम आता है, V माइनस NB ऐसा। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने प्रेशर का एडजस्टमेंट देखा था, अभी मैंने वॉल्यूम का एडजस्टमेंट देख लिया। ये दोनों को अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन में डालेगा, अगर ये दोनों को मैं आइडियल गैस इक्वेशन में डालेगा तो मेरा आइडियल गैस इक्वेशन चेंज हो जाएगा एज अकॉर्डिंग टू रियल गैसेस। Yes, sir. PV इज इक्वल टू nRT, ये मेरा आइडियल गैस इक्वेशन है। अब मैंने क्या सीखा है बेटा, प्रेशर और वॉल्यूम का रियल गैसेस में प्रेशर कम होता है और वॉल्यूम ज्यादा होता है ना, तो वो एडजस्टमेंट मैं यहां डालूं, ये हो जाएगा मेरा रियल गैस क्या बोलते तो भी, दिस इज योर वैन डर वाल्स इक्वेशन, दिस इज द एडजस्टेड आइडियल गैस इक्वेशन। ये बेटा मैंने प्रेशर और वॉल्यूम का जो ये है एक्चुअल में कितना होगा आइडियली, वो मैंने यहां पे डाला है बेटा। ये नहीं रे, समझा कि नहीं? No, sir. You didn't understand? Oh my God. बेटा PV इज इक्वल टू nRT हमने सीखा है, राइट? Yes, sir. अच्छा, बट हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या प्रूव किया, आइडियली द प्रेशर ऑफ द गैस इज लेस, आइडियली द प्रेशर ऑफ द गैस इज लेस, Than Yes, the sir. real gas. नहीं आई एम सो सॉरी, हाँ रियलिटी में प्रेशर ऑफ द गैस कम होता है ना, और आइडियली वो ज्यादा होता है। तो कितना ज्यादा होता है, AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर ज्यादा होता है, राइट? Yes, sir. तो मैंने वो प्रेशर जितना ज्यादा होता है बस वो ऐड कर दिया है उसके अंदर, ये इतना वैल्यू ज्यादा होता है, जितना अपन कैलकुलेट करते हैं उससे ज्यादा इतना रहता है आइडियल में, ठीक है? अच्छा, रियलिटी में वॉल्यूम ज्यादा रहता है बट आइडियली वॉल्यूम कम रहता है, तो कितना कम रहता है, इतना। तो बस मैंने आइडियल गैस इक्वेशन में उसके एक्चुअल वैल्यूज पुटअप करके उसको एडजस्ट कर दिया है, बस जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। PV इज इक्वल टू nRT में P प्लस AN स्क्वायर बाई V स्क्वायर एंड V माइनस NB इज इक्वल टू nRT कर दिया बेटा इसको। ओके बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. पक्का रचना समझा? घनश्याम, आदित्य, Yes, sir. Yes, sir. अमित, कृष्णा, अश्विन, आर्यन, this is your van der Waals equation, ठीक है? N is number of moles and A and B are called as van der Waals constant। ये A और B का वैल्यू ना नेचर ऑफ गैस और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है। हर एक गैस के लिए A और B का वैल्यू अलग आएगा। बेटा आई एम अगेन रिपीटिंग, ये आपको 11th के पोर्शन में नहीं है, मैं आपको ये एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूं। ये लिख लिया वो V माइनस NB करो, क्या बोल रहे हो बेटा? वो V माइनस NB, V माइनस NB, V माइनस NB, ठीक है? ये रियलिटी है ना बेटा। वॉल्यूम, आइडियल वॉल्यूम कितना होता है, नेग्लिजिबल होता है, बट रियलिटी में वॉल्यूम कितना ज्यादा होता है, NB, इतना अमाउंट ज्यादा होता है। ये NB अमाउंट ऑफ वॉल्यूम हम लोग आइडियल गैसेस के लिए काउंट नहीं करते हैं, राइट? तो आइडियल गैस को एडजस्ट करने के लिए मैंने वो जो जितना प्रेशर कम था वो वैल्यू ऐड किया और जितना वॉल्यूम ज्यादा था वो उसमें से सब्ट्रैक्ट किया, तो मुझे फिर से आइडियल गैस वॉल्यूम को एडजस्ट करके ऐसा इक्वेशन मिलेगा, सिंपल एज दैट। रियलिटी में AN स्क्वायर V स्क्वायर कम होता है प्रेशर एंड NB वॉल्यूम ज्यादा होती है, तो जो कम होता है वो मैंने इसमें ऐड किया, जो ज्यादा होता है वो मैंने इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, तो फिर से आइडियल गैस इक्वेशन ही बन गया ना बेटा ये। ओके Yes, सर, sir. यस सर, यस, अभी समझा? यस सर, यस, अभी लिख लिया ये? 1 सेकंड सर। Can we go ahead? Yes, sir. Yes, sir. So the value of A and B, it depends on the nature and the characteristics of the gas. A का value is independent of temperature and pressure. It depends on volume only.
ओके ये देखो ये ग्राफ। अब यू रिमेंबर आई टोल्ड यू कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, किसी गैस को हम लोग कितनी आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं वो हमें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बताता है। वो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हमको बोलता है which is Z. What is Z? It is the ratio of PV divided by nRT. It is the ratio of PV divided by nRT. ए बेटा आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? PV is equal to nRT. Yes, Yes, sir. sir. तो PV को अगर मैं nRT से डिवाइड करूंगा तो आइडियल गैस इक्वेशन में Z का वैल्यू क्या आना चाहिए? 1. PV is equal to nRT. 3 is equal to 3. So 3 divided by 3 क्या हो जाएगा बेटा? 1. 1. हाँ अभी समझे why PV upon nRT is equal to 1 for an ideal gas? Yes, sir. Yes, sir. Ideal gas में the product of pressure and volume is PV. This is equal to the product of number of moles R and T. When PV is equal to nRT, if I divide PV by nRT, value 1 आना चाहिए ना। अगर मैं उस इक्वेशन को भी एडजस्ट करूं तो PV और nRT को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाऊं तो PV अपॉन nRT इज इक्वल टू 1 हो जाएगा ना। सिंपल सी बात है बेटा, Yes, sir. सिंपल मैथमेटिक्स ना, सिंपल मैथमेटिक्स। PV क्या है 3, nRT क्या है 3, 3 इज इक्वल टू 3, तो PV अपॉन nRT का रेशियो क्या हो जाएगा 1। Yes, sir. Patch. So this is your compressibility factor, ठीक है। PV is equal to PV upon N, and for ideal gas equations Z is equal to 1. इसीलिए अपने को ये straight line मिलता है Z is equal to 1 constant for ideal gases, ठीक है। बट अगर मैं against pressure compressibility factor का ग्राफ प्लॉट करता हूं, again I will get deviation for real gases. At lower pressures, the value of Z will be very close to ideal gases. For all gases, देखो सब gases are intersecting over here ना, so at low pressure पे ही वो value 1 के आसपास आ रहा है, but जैसे जैसे pressure increase करोगे तब वो value is going greater than 1, मतलब गैस को easily compress नहीं कर सकते। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है बेटा? बिकॉज रियल लाइफ में प्रेशर कम और वॉल्यूम ज्यादा है, तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट नहीं रहेगा, और अगर कांस्टेंट नहीं रहेगा मतलब उसका वैल्यू चेंज हो रहा है, और अगर न्यूमरेटर का वैल्यू चेंज हो रहा है मतलब मेरा जो रेशियो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है, प्रेशर तो बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट से कम है बट वॉल्यूम ज्यादा है, इसीलिए वो रेशियो बढ़ेगा, ग्रेटर देन 1 आएगा। But Yes, sir. at lower pressures, the gases will have compressibility factor either equal to 1 or lower than 1. इसका मतलब क्या है? मैं लो प्रेशर पे मेरा गैसेस ना they are behaving ideally, ये मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा, ठीक है। That is why they are having compressibility factor almost near to 1. And these gases are easily compressible. ऐसे gases का आप टेम्परेचर कम कर दोगे ना वो आराम से कंप्रेस हो सकते हैं। So real gases will show ideal behavior, okay, will show ideal behavior when the molecules atoms उनका जो actual volume है that can be neglected than the total volume. Only ये कब होगा? At low pressures only. So behavior of gas is becoming more ideal at lower pressures, ठीक है। Low pressure पे gases are behaving ideally, near to ideal, not एकदम exactly ideally. ये देखो टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर पे अगर हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हम लोग को इस तरीके के वैल्यूज आते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस के लिए कुछ और, 59 के लिए और, 0 के लिए और, -50 के लिए और। अगर आप लोअर टेम्परेचर देखो -50 और 0 देखो, ये लोअर टेम्परेचर के लिए ग्राफ -1 से लो जा रहा है ना, बिकॉज इस लो टेम्परेचर पे
मेरे गैस को मैं अच्छे से इजीली कंप्रेस कर सकता हूँ। क्यों? बिकॉज गैस के मॉलिक्यूल्स यहाँ वहां भटक नहीं रहे हैं, वो उनका मोशन स्लो हो गया है, तो उनको एक दूसरे के पास लाना आसान हो जाएगा, कंप्रेस करना आसान हो जाएगा एट लोअर टेम्परेचर। बट हायर टेम्परेचर देखो बेटा, टेम्परेचर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ाता हूं, क्या होगा? कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, अभी प्रेशर बढ़ाने से कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्यों बढ़ेगा बेटा? बिकॉज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज रेशियो ऑफ पीवी अपॉन एनआरटी। पीवी पी कहां पे है? न्यूमरेटर में है। अगर मैं किसी रेशियो का न्यूमरेटर इंक्रीज करूं तो मेरा तो पूरा वैल्यू इंक्रीज होता है कि नहीं बेटा? 3/4 इज स्मॉल देन 4/4। डिनोमिनेटर सेम है, और अगर मैंने न्यूमरेटर बढ़ाया तो मतलब रेशियो बढ़ेगा ना? Yes. Yes. Yes, sir. Guys, come on, wake up. सोते मत जाओ। अच्छा, अभी ये याद रखना बेटा, the temperature at which, again this is from entrance point of view, the temperature at which a real gas obeys ideal gas laws over an appreciable range of pressure is known as boil temperature or boil point। इसका मतलब ये है कि एक गैस 59 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ना, इसका जो बिहेवियर था वो आइडियल गैस के जैसा ही था फॉर अ अप्रिशिएबल रेंज, मतलब फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ प्रेशर। यहां से देखो बेटा, यहां से 0 से लेके ऑलमोस्ट 280 तक, 280 एटीएम प्रेशर तक। ठीक है, माय गैस वाज वेरी नियर टू आइडियल गैस बिहेवियर। उसके बाद क्या हुआ? डिविएट हो गया और बहुत ऊपर चला गया। बट ये टेम्परेचर पे फॉर एन अप्रिशिएबल रेंज ऑफ प्रेशर द गैस इज बिहेविंग लाइक आइडियल गैस फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, दैट्स व्हाई दिस टेम्परेचर विल बी कॉल्ड एज द बॉयल टेम्परेचर और बॉयल पॉइंट। दूसरे टेम्परेचर जो, दूसरे ग्राफ जो मैंने आपको दिखाए थे वो बहुत दूर थे ना आइडियल गैस से, वो दूर दूर जा रहे थे, पास में कोई आ ही नहीं रहा था। अरे ये देखो बेटा, सिर्फ 59 पे एक ऐसी लाइन दिख रही है जो इस 1 के आसपास है, बाकी सब टेम्परेचर्स पे इट इज अवे फ्रॉम 1, इट इज अवे फ्रॉम 1, राइट बेटा? Yes, sir. Yes, sir. एंड क्लोज टू 1 फॉर अ लॉन्ग रेंज ऑफ प्रेशर फ्रॉम ईयर टू ईयर। कोई भी प्रेशर का वैल्यू लो, इसका वैल्यू 1 के आसपास ही रहेगा। बट यहाँ पे देखो, अगर यहाँ से यहाँ प्रेशर का वैल्यू लिया तो इतना चेंज हो गया, यहाँ से यहाँ देखो कितना वैल्यूज चेंज हो रहा है, अलग हो रहा है, 1 से दूर हो रहा है वो। दैट वे आई वाज स्पीकिंग। ये लिख लिया बेटा, आपको काम आएगा इंटरेस्ट में। This is the boil temperature of nitrogen, 332 Kelvin. Okay, अच्छा, तो above boil temperature it is difficult to compress the gas, but below boil temperature they showed weird behavior, it is easy to compress। ओके, एक पॉइंट तक वो कांस्टेंट रहेगा, उसके बाद वो सूप करके शूट अप करेगा। Hello, sir. हाँ बेटा, सर एक बार पीछे लो ना, वो लिखना है। एक मिनट बेटा लेता हूँ। यू रिमेम्बर दिस स्टेटमेंट जो मैंने आपको बोला, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर गैसेस शो आइडियल बिहेवियर। सो या तो गैस मेरा लो प्रेशर पे होना चाहिए या फिर मेरा गैस हाई टेम्परेचर पे होना चाहिए, तभी मेरा गैस आइडियल बिहेवियर दिखाएगा, अदरवाइज नहीं। कहाँ गया वो? ये ना बेटा, ये लिखना है ना। Yes, sir. Done, sir. ओके बेटा, so at low pressure and high temperature, so compressibility factor
for a gas is calculated as Z is equal to PV by nRT. बट अगर वो रियल गैस रहेगा तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम, रियल वॉल्यूम हो जाएगा, बिकॉज रियल वॉल्यूम इज बिगर देन द आइडियल वॉल्यूम, राइट बेटा? हमने अभी बहुत बार डिस्कस किया ये। तो Z फॉर रियल गैसेस क्या हो जाएगा? Z इज इक्वल टू PV रियल अपॉन nRT। और आइडियल गैसेस के लिए हो गया V आइडियल इज इक्वल टू nRT अपॉन P। ए बेटा, आइडियल गैसेस के लिए क्या है? PV आइडियल इज इक्वल टू nRT। तो V आइडियल क्या हो जाएगा? nRT अपॉन P। इट इज जस्ट रीअरेंजमेंट ऑफ टर्म्स। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है बेटा? PV इज इक्वल टू nRT ना। तो मैंने क्या किया है? P को डिनोमिनेटर में ले लिया है, समझा ये? Yes, sir. हाँ सर। अच्छा, तो V आइडियल क्या हो गया बेटा? nRT अपॉन P। ये इस इक्वेशन में आपको nRT अपॉन P कहीं दिख रहा है? अगर इस P को मैं डिनोमिनेटर में ले आऊं तो कहां पे आएगा? nRT अपॉन P हो जाएगा ना ये? Yes, हाँ sir. सर। अच्छा, तो Z क्या हो जाएगा बेटा? V रियल अपॉन V आइडियल। Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये लिख लो बच्चे। अगर ये नहीं समझा तो मुझे पूछो, मुझे बताओ। आप इसके बीच में एक और स्टेप लिखना, ये जब दोबारा लिखोगे तो दिस इज इक्वल टू V रियल अपॉन nRT अपॉन P। अपॉन P आएगा तो P इसलिए ऊपर गया ना। ये तो सिंपल मैथ्स है। Yes, sir. एक और बताओ क्या करने का? क्या बोल रहे हो बेटा? एक और बताओ क्या करने का? Z is equal to PV real upon nRT. Z is equal to V real upon nRT upon P. nRT upon P. ओके सर। तो nRT upon P क्या है? V आइडियल। तो Z क्या हो जाएगा? V रियल अपॉन V आइडियल। सिंपल। यस सर। लिख लिया? No, sir. अच्छा, so it is giving you what is, so in short, what is compressibility factor? It is the ratio of the volume of real gas to the volume of the ideal gas, है ना बेटा? यस Yes, सर। sir. अच्छा बेटा, हो गया लिख के? Yes, sir. ओके। अच्छा, the next topic which we need to study is liquefaction of gases. When I say liquefaction of gases, it means I want to convert my gas into liquid. अब मुझे मेरे गैस को लिक्विड करने के दो तरीके हैं बेटा, मैंने अभी आपको बताया था। Either you increase the pressure on the gas and bring the molecules together, or you decrease the kinetic energy and make the molecules slow so that they can come close to each other, है ना बेटा? यस सर। अच्छा, when is your next lecture? आपका नेक्स्ट लेक्चर कितने बजे है? 2:30. 2:30। ठीक है, then we'll do one thing, we will continue this in the next lecture then, okay? Okay, sir. Yes, sir. सर।